السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم ایک اسلامک پیراڈائم آف ہیلتھ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی شروعات کیسے ہوئی، آج میں آپ سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ ذہن میں میرے کیسے آیا اور کب آیا۔ اور اس کی شروعات اس وقت ہوئی جب میں لکھنؤ کے کنگ جارجز میڈیکل کالج میں MBBS فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا۔ یہ تقریباً 1976 کی بات ہے اور میری عمر اس وقت مشکل سے 18-19 سال رہی ہوگی۔ ہمارے یہاں MBBS فرسٹ پروفیشنل میں جو مین سبجیکٹ ہوتا ہے وہ انیٹمی ہوتا ہے، یعنی پورے باڈی کا اسٹرکچر اس کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ اور جب برین کی انیٹمی پڑھائی جا رہی تھی تو میرے سامنے ایک عجیب و غریب چیز آئی۔ برین میں ایک پورشن ہوتا ہے جسے سیریبرم کہتے ہیں، اور اس سیریبرم میں ایک خاص جگہ ہوتی ہے، پوسٹ سینٹرل گائرس کہلاتی ہے۔ ہماری باڈی کی جو مجموعی پوری اس کا جو عمل ہے، اس کے جو فنکشنز ہیں، وہ دو خاص چیزوں کے اوپر منحصر ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم سینسری سسٹم کہتے ہیں اور ایک کو موٹر سسٹم کہتے ہیں۔ سینسری سسٹم کا مطلب ہوتا ہے حساس، یعنی احساس کسی چیز کا باڈی کے اندر۔ جیسے ہم نے جب گرم کوئی چیز اگر ہم نے یہاں پر لگائی تو یہ جیسے ہی وہ اسکن پر ٹچ ہوتی ہے تو ایک الیکٹرک کرنٹ پورے اس کو لے جاتا ہے، اس کی انفارمیشن کو باڈی کے ایک خاص آرگن کے اندر لے جاتا ہے، برین کے اندر، جس کو پوسٹ سینٹرل گائرس کہا جاتا ہے۔ پھر ایک موٹر ایکشن ہوتا ہے، فوراً ہم ہاتھ ہٹاتے ہیں اس گرم چیز سے تو اسے ایک موٹر ایکشن ہے، یعنی حرکت آئی۔ احساس اور حرکت، یہ دو چیزیں، ایک سینسری سسٹم اور ایک موٹر سسٹم۔ تو جب میں وہ پوسٹ سینٹرل گائرس پر ایک سینسری سسٹم کا ایک پورا میپ بنا ہوتا ہے، یعنی اس میپ میں الگ الگ باڈی کے اعضاء، الگ الگ حصوں کی ایک نمائندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ کون سا حصہ جسم کا اس علاقے میں کس حصے سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے، اس کا پورا کنٹرولنگ میکانزم وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو جب پوسٹ سینٹرل گائرس پر میری نظر پڑی، اور یہ نقشہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ جو اعضاء کی جو ایک پورے کا پورا سیکوینس ہے، اس کی جو ترتیب ہے وہ ایک خاص انداز سے ہے۔ اور جب اس ترتیب پر میری نظر پڑی تو میں چونک گیا، چونکہ اس ترتیب کے اندر تقریباً 100% وہی ترتیب تھی جو ہم وضو کے اندر اعضاء کو دھونے میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو اصل وضو کی شروعات ہوتی ہے وہ ہاتھ تو ہم اس سے پہلے دھوتے ہیں صرف ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے، لیکن اصل وضو کی جو شروعات ہوتی ہے وہ کلی کرنے سے ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر، اس نقشے کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو اس میں زبان اور حلق کے حصے وہ سب سے پہلے سب سے اوپر آتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو اس نقشے کے اندر بھی اس کے بعد میں ناک آتا ہے۔ پھر ہم چہرہ دھوتے ہیں دونوں ہاتھوں سے، ماتھا یہ حصہ پہلے آتا ہے، پھر آنکھیں آتی ہیں، پھر پورا کا پورا دونوں طرف سے جو ہمارے رخسار ہیں، ہمارے گال ہیں، وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی ترتیب اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے بعد میں عام طور پر اگر ایک آدمی کا خیال ہو تو ایسا لگے گا کہ جب ہم منہ دھو رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ سر کا مسا ساتھ ساتھ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس نقشے میں ہم نے دیکھا کہ سر کی جو سیکوینس ہے وہ وہاں پر نہیں ہے۔ اس کے بعد جو سیکوینس ہے وہ ہاتھوں کی سیکوینس ہے، اور ہاتھوں کی سیکوینس میں بھی ایک خاص چیز دیکھی گئی کہ جو یہ حصہ ہے، یہ حصہ وہ پہلے ہے، اس کے بعد میں کلئی ہے، اور اس کے بعد میں ایلبو ہے۔ چنانچہ ہم وضو کے اندر اسی طریقے سے باہیں دھوتے ہیں، وہی بالکل ایگزیکٹ سیکوینس اس جگہ پر فالو ہو رہا ہے پوسٹ سینٹرل گائرس کے اندر۔ اس کے بعد میں سر ہے، ہم ہاتھ دھونے کے بعد مسا کرتے ہیں تو اس کے بعد میں سر اور کان اور گردن کا پچھلا حصہ وہ اسی سیکوینس کے اندر موجود ہے۔ اور چونکہ وضو کے اندر ہم پورے بدن کا ظاہر ہے، اس کو پورے بدن کو نہیں دھوتے ہیں تو اس کا بیچ کا حصے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، آخر میں پیر ہیں، اس نقشے میں بھی آخر میں پیر ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا جو سینسری سسٹم کے اکارڈنگ ہی انرویشن جس کو ہم کہتے ہیں، اسی کے اکارڈنگ پوری ہم وضو میں بھی اسی سیکوینس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز میرے لیے بڑی حیران کرنے والی تھی، اور میں نے پھر اس کے اوپر چونکہ میری نظر پڑی اور میرے ذہن میں سوال آیا تو میں نے اس کے اوپر مزید تحقیقات شروع کی، اور ایک بڑی دلچسپ بات میرے سامنے آئی کہ اس میں ایک اور چیز میرے سامنے، ایک نقشہ آیا جس کو ایک منی مین انسائیڈ دا برین،
या उसको टेक्निकल लैंग्वेज में होमनक्यूलस कहा जाता है। और ये तस्वीर आपके सामने आ रही है, आप इसको देख रहे होंगे कि ये इंसान की एक बड़ी बिगड़ी हुई सी तस्वीर है, बड़ी डिस्टॉर्टेड इमेज है। इसमें आप देखिए कि होंठ कितने बड़े हैं, चेहरा कितना बड़ा है और नाक बड़ी है, हाथ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लोगों के बीच का जो बदन का हिस्सा है वो बहुत ज़रा सा है। तो एक अजीब किस्म की तस्वीर है, और ये तस्वीर वो है जो दिमाग के अंदर इंसान की तस्वीर मौजूद होती है। अब आप इसमें देखिए, इस के अंदर देखिए, चूंकि ये जो तस्वीर है ये उस एतबार से है कि किस ऑर्गन की अहमियत सेंसरी सिस्टम में कितनी ज़्यादा है। जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, और जिसकी अहमियत कम है वो निस्बतन कम दिखाई देता है। तो इसको देखिए आप होमनक्यूलस को, और आपको ये नज़र आएगा कि जिन आज़ा का इस्तेमाल हम वज़ू के अंदर जिन आज़ा को धोते हैं उन हिस्सों का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, और जो आज़ा वज़ू में नहीं धोए जाते, पूरा ये बीच का हिस्सा, उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो चुनाचे हम वज़ू के अंदर बाहर से अगर हम देखें तो मुश्किल से 15% हिस्से को ही हम धोते हैं या टच करते हैं, और अगर हम अंदर देखें ब्रेन के अंदर तो तकरीबन 80-85% हिस्सा वो कवर हो रहा होता है। तो मैंने उसी ज़माने के अंदर एक बाकायदा एक मकाला लिखा, और वो मकाला कई जगहों पर हिंदुस्तान में भी और इंग्लैंड और अरब दुनिया के भी कई अखबारों के अंदर वो शाये हुआ, और वो मकाला बहुत मकबूल हुआ। 1977 में की बात है यही है, जब हिंदुस्तान के सबसे पहले वो रेडियंस के अंदर शाये हुआ था, रेडियंस के ईद स्पेशल में, फिर लंदन से शाये हुआ, फिर कुवैत के एक अखबार के अंदर उसको बाद में भी शाये किया गया। तो ये बड़ी अजीब व गरीब तस्वीर थी, जो जहाँ से मेरा जहन इस तरफ चलने लगा कि हर चीज़ का ताल्लुक़, चूँकि इस्लाम में आगे हम आपके सामने वाज़ह करेंगे कि इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन एक अजीब व गरीब कॉन्स्टिट्यूशन है जो दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से मुख्तलिफ है। इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन एक 3 डायमेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल प्रोहिबिशंस तीनों को बराबर अहमियत दी जाती है। अगर आप दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखें बशमूल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर होता है वो बहुत बड़ा होता है। सारी तवज्जो सारी दुनिया में फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के ऊपर होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अगर तज़किरा होता भी है तो बहुत थोड़ा होता है, और फंडामेंटल प्रोहिबिशंस नाम की कोई चीज़ किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इंसान को एक अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है तो उसमें तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि क्या चीज़ें उसको करने का हक़ है, क्या चीज़ें उसको करना चाहिए हर हालत में जो उसके ऊपर फ़र्ज़ हैं, और क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको किसी भी सूरत में उसको नहीं करना चाहिए। इन तीनों के बग़ैर अगर इन तीनों में से कोई एक भी जुज़ खाली होगा तो उससे बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होंगी, और चुनाचे इसी का नतीजा हम पूरे दुनिया के अंदर जिस किस्म का माहौल और जिस किस्म का निज़ाम कायम हुआ है उससे कितनी खबासतें और कितनी सेहत की खराबियाँ पैदा हो रही है, ये हम अगले एपिसोड्स के अंदर आपको वाज़े कर रहे होंगे। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, उसमें ईमान के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ज़ाहिर नमाज है, और नमाज का पहला जुज़ वज़ू है। तो वज़ू के बारे में मैंने आपको बताया, ये चीज़ तो मैंने बताई कि उसका रिप्रेजेंटेशन से ताल्लुक़। अब वज़ू के फ़ायदे क्या हैं, ये बहुत अहम चीज़ है। और आपने आजकल कोरोना का दौर है, हर तरफ आप जिक्र सुन रहे होंगे कि हाथों को बार बार धोइए, बार बार धोइए। चुनाचे इस्लाम के अंदर तो बाज़ाब्ता कम अज़ कम दिन में 5 मरतबा नमाज होती है, तो 5 मरतबा एक वज़ू का एक मौजूद रहता है कि वज़ू की जाती है, और वज़ू में ज़ाहिर हाथ को बहुत अच्छी तरह पहले धोया जाता है, और उसके बाद जितने भी एक्सपोज्ड ऑर्गन्स हैं जो कपड़ों में छुपे नहीं होते उनको हम धोते हैं। इसके बहुत सारे मफादात हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। और चूँकि इस कुरान उसका नमाज़ों का निज़ाम इस तरह रखा गया है कि पहले सुबह को तुले खुर्शीद से पहले, सूरज निकलने से पहले के वक्त है, उसके बाद में जब आदमी काम पर चला जाता है तो एक दिन के अंदर जब पूरी धूप अपने उरूज पर होती है, उसके बाद ज़ोहर की नमाज का वक्त शुरू होता है, फिर सहपहर में असर का वक्त शुरू होता है, उसके बाद में फिर गुरूब के वक्त के फ़ौरन बाद मगरिब, और बाद में आखिर में इशा। तो एक बीच के अंदर एक वक्फ़ा है इस तरह का कि उस वक्फ़े के अंदर इंसान के बदन के अंदर जो पूरा पसीना उसके ऊपर आता रहता है, और मुख्तलिफ जब इंसान बाहर काम करता है तो ज़ाहिर है धूल मिट्टी और बहुत सारी चीज़ें उसके बदन पर चिपकती रहती हैं, केमिकल्स चिपकते रहते हैं। जब वज़ू करते हैं हम तो पहला काम उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो केमिकल्स बॉडी की धूल और गर्द हमारे जो एक्सपोज्ड ऑर्गन्स हैं उससे वो हट जाती है, पसीना हट जाता है।
अगर वो पसीना वहाँ पर मौजूद रहेगा तो उस जगह पर बहुत सारे किस्म के एब्सेसेस, फ्यूरंकल्स जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीज़ें होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो चुनाचे एक वज़ू का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वो स्किन के इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में बड़ा मुआविन साबित होता है। और बहुत सारे स्किन के इन्फेक्शंस ऐसे हैं कि जब स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है तो बाकी बदन में भी फैल सकता है इन्फेक्शन। एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो ख़ास तौर पर उन इलाक़ों में होता है कि जो सर्द ममालिक हैं, जहाँ पर निस्बतन लोग ज़्यादा गोरे होते हैं, और उन गोरे लोगों को आपने देखा होगा अक्सर के धूप में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो वो धूप में उनकी स्किन के ऊपर वो टैनिंग होती है और उसकी वजह से उनको उनके अंदर कैंसर के जो कैंसर ऑफ स्किन है उनके होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। चुनाचे बहुत सारे जितने जहाँ पर वाइट पॉपुलेशंस रहती हैं उनमें अक्सर कैंसर ऑफ स्किन के वाक़यात अच्छे खासे होते हैं। और स्किन कैंसर से हर साल कमोबेश 66,000 अमवात होती हैं। वज़ू का एक बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वज़ू करने से उस कैंसर ऑफ स्किन होने के इम्कानात भी कम ही हो जाती है, चूँकि जिन अज्जा से जो केमिकल्स वहाँ पर जमा हो रहे होते हैं और जो मेलेनिन, उसको कंट्रोल करने में वज़ू एक बहुत मुआविन साबित होता है। तो एक वज़ू का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है। उसके अलावा मिसवाक की एक बेइंतहा अहमियत है और बुखारी शरीफ की एक हदीस है जिसका मैं मफ़हूम आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मुझको इस बात का ख़दशा ना होता कि ये लोगों के लिए बड़ा मुश्किल पड़ेगा तो मैं हर नमाज से पहले मिसवाक को फ़र्ज़ करार दे देता। और दूसरी जगह कहा कि मिसवाक इंसान के लिए तो पाकी का ज़रिया है और वो अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा है। ये दूसरी एक हदीस का मफ़हूम है। और मिसवाक करने से बहुत सारे, न सिर्फ दांतों के, बहुत सारे, चूँकि जब आदमी खाना खाता है, कोई चीज़ खा रहा होता है तो उसके दांतों के अंदर, दांतों के बीच में, मसूड़ों के अंदर वो ज़र्रे उसके खाने के जम जाते हैं और वो ज़र्रे जो हैं उसके बाद में उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन बैठ जाता है। तो दांतों की बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को दांत निकलवाने पड़ते हैं, फिर नए दांत लगवाने पड़ते हैं। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। तो मिसवाक करने से इसके इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। जो ज़ाहिर है जितना मिसवाक करेगा और जितना भी वो हर खाने के बाद में कुल्ली करेगा, उस तमाम जो सुन्नतें हैं उनकी एहतियात करेगा, उसके इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। और मिसवाक से ये भी देखा गया है कि जो कैरीज़ और डेंटल इन्फेक्शंस हैं उनमें से बहुत से इन्फेक्शंस ऐसे हैं कि अगर वो बैठ जाएं तो वो बॉडी के अंदर और दूसरे इन्फेक्शंस, बॉडी के अंदर के लंग्स के और इवन हार्ट तक के इन्फेक्शंस वो पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए मिसवाक की बहुत ज़्यादा अहमियत देखी गई है। तो हमने आज वज़ू में देखा कि वज़ू किस कदर अहम है इंसान की सेहत की बरकरारी के लिए। न सिर्फ इन्फेक्शस डिसीज़ वज़ू से बहुत कंट्रोल होती हैं, बल्कि उसके अलावा बहुत सारे कैंसर्स होने के भी इम्कानात कम हो जाते हैं वज़ू करने से, और बहुत सीरियस किस्म के इन्फेक्शंस जो पूरी बॉडी के होते हैं उनके इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं। मैं अगले एपिसोड में आपको फिर इसी कहानी का एक और नया जुज़ बताऊँगा कि जब मैं MBBS 3rd ईयर में पहुंचता हूं तो वहां पर जब हमको मेडिकल साइंसेस की बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई होती हैं तो उसी में एक चीज़ आती है जिसका ताल्लुक़ सजदे से है, और वो पूरी की पूरी उसका कितने फ़ायदे हैं और पूरा नमाज के कितने फ़ायदे हैं मैं आपसे अगले एपिसोड के अंदर इंशाअल्लाह बात करूँगा।